एक तो ये सरकारी एग्जाम ना, और सरकारी एग्जाम की तैयारी बड़ी सरकारी तरीके से होती है। सर आपने क्या फील करा है उस ओआरएन की गलियों में? होप शायद नहीं कहना चाहिए, बट 1.5 साल में बच्चे को आप ये नहीं सिखा पाए कि आंसर कैसे लिखना है। तो गलती आपकी है ना, बच्चे की थोड़ी है। और क्या ही है इस आंसर में लिखने के लिए? तो मतलब ब्लैक होल है, डार्क साइड तो मल्टी लेयर्ड है, मतलब राजद अंग्रेज है ब्लैक होल। आर यूपीएससी एग्जाम्स आल्सो rigged? Interview processes are very, very questionable. UPSC itself has admitted in the mains they can never ask you your opinion on reservation. जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनको सिस्टमैटिकली रिजेक्ट कर रहा है यूपीएससी थ्रू द एग्जाम प्रोसेस। To be very honest, is the UPSC the best government job in the country? Is it the best job in the country? मतलब ये नहीं करना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपने ये किया। व्हाट आर द डोंट्स ऑफ दिस एग्जाम? Hey guys, my name is Vibhu Gaur and I welcome you all to the Gaur Se Suno podcast. In today's episode, we have with us Atish Mathur sir. Atish Mathur sir is a lawyer turned UPSC educator. He has been guiding the UPSC aspirants for the past 10 years and I have had the privilege to be one of his students. In today's episode, we will look at the UPSC exam from Atish Mathur sir's POV. So let's get into the conversation. Atish sir, welcome to the Gaur Se Suno podcast. It's a privilege to have you on the show. कैसा फील कर रहे हैं सर? बिल्कुल, it's an honor, and life comes a full circle when students become colleagues. So firstly, congratulations on your work. I've been following your incredible educational content, especially current affairs. तो बहुत अच्छा लग रहा है यार. It's a privilege. Genuinely, it's a privilege. Thank you so much, sir. It's our privilege to have you on the show. So, sir, when we were researching for this podcast, before we start about the UPSC and we talk about UPSC, when we were researching for this podcast, I came across a picture on your Instagram page and it took me by surprise. It was a picture with Major Anuj Sood. For the reference of audience, Major Anuj Sood was a brave Indian Army officer who was awarded Shaurya Chakra for the supreme sacrifice he made for the nation in Kashmir in an operation on May 2nd, 2020. So, sir, what is this relation with the armed forces? Come from the armed forces background. My father was in the army. My brother is serving in the Coast Guard. Uh, my several other members in the family are serving or have served. So we've all matlab, studied in army schools, army public schools through and through. Anuj and I were classmates at Army Public School, Lucknow. So we were three friends who we were in the same class for a very long time. And then his father, uncle, got posted out, and we always kept in touch. We were very close friends, and yeah, we lost him to the Handwara attacks, where there was an ambush, and of course he led his life for the country, and this happened in the peak of the pandemic. Yeah. So he had to his body had to come to Chandigarh because uncle and everybody was living there. So we all had to rush, and in the pandemic, the body was received at the Chandigarh airport, and then of course the rites and everything were performed. And he'd lost his mother a little while ago, and his sister lives in Australia. He's survived by his wife, and uncle's obviously there. So yeah, it's very close association. We've grown up with things like these. We've had teachers who've lost their husbands to the war. We've had friends, not very close ones, who've lost parents to the war. But to know somebody so personally was a setback, because you don't understand कि इसमें गलती किसकी है. एंड मतलब जो पहला रिएक्शन होता है ना, वो वही रिएक्शन होता है जो आप सोच सकते हो. You think in a certain way for somebody, against somebody, but then you realize कि ये गलती किसी एक इंसान या एक सेक्शन की नहीं है. War has a price, and the only price that war has is the price of humanity. I mean, obviously he was tortured and all of that. We can't get into more details, Yeah. but
it was मतलब it still is something that we all think of. मतलब ऐसा नहीं है कि हफ्ता नहीं जाता, we always remember of him very closely. So yeah. Sir, I gave this reference because during the pandemic, I started reading a lot about the military stories. I got a book, India's Most Fearless by Shiv Arur. And I started reading that book. And at that time only, I heard about Anuj Sood. And I was very touched by his story. So when I saw that picture, it was like, I have to ask this question. But sir, like you said, these incidents, do you think ये आपका लाइफ की तरफ एक नज़रिया जो होता है उसको चेंज करते हैं, आपका पर्सपेक्टिव को किसी तरह से शिफ्ट करते हैं? Personally, yes. मतलब for us, life has not been the same. We've not looked at things the same way. Then you realize that आप क्या chase कर रहे हो. And when people, sorry, little tough for me, Yeah, but when people do the right thing, then you realize you've got to do the right thing. So that has really had a मतलब it has had an impact beyond impact. तो वो है, it changes you completely, and lot of things, death generally changes you, Yeah. or exposure to death generally changes you, whether it's somebody who's been martyred, or students, everything, like death does affect you, of course it does. तो सर अब बात करते हैं यूपीएससी के बारे में. So you have been teaching UPSC aspirants since a decade now. तो आई एम श्योर आपकी भी जो यूट्यूब फीड है उसमें ग्रैंड एंट्री वाली वीडियोस तो कभी ना कभी आ ही जाती होंगी, जो रील्स होती हैं. So, so my question is the fact that this kind of a content is getting consumed at this level. Don't you think it is very alarming? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डोंट यू थिंक जो एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो इतनी शैलो एस्पिरेशंस रख के इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सो दे डोंट हैव देयर प्रायोरिटीज सेट राइट. Cinema is a reflection of society, and society is a reflection of cinema. So जो ये, if you apply the same logic here, वो रील बना रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, और वो रील देख रहे हैं क्योंकि उनको रील देखना अच्छा लगता है. We are in a very clickbait, consumer friendly, hyper adrenaline sort of an era, और वो immediate kick मिल जाता है. वो unfortunately that is not the right thing to do. क्या वो एस्पिरेशन शैलो है कि अगर आपका वर्ल्ड व्यू ये है कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगा तो मेरे को इतना ठाट मिलेगा, इतना वो मिलेगा, एक तो वो इनकम्प्लीट पिक्चर है. बिकॉज वो रील, मतलब सिविल सर्विसेज में जहाँ तक मेरी को लिमिटेड समझ में आया, जो बच्चे अभी क्लियर करते हैं जनरली इस बारे में बताते हैं, योर आहा मोमेंट्स आर वेरी रेयर. आप 6-8 महीने काम करते हो वो एक दिन के आहा मोमेंट के लिए, तो वो आप एक दिन के आहा मोमेंट के पीछे 8 महीने की मेहनत भूल जाते हो. एंड दे लिव इन, एंड सिविल सर्वेंट्स live in very difficult circumstances. ऐसा नहीं है, you're in the middle of nowhere, you have very little recreation, you have all those things. तो जो वो बच्चा सिर्फ वही देखता है ना, इट इज़ लाइक बॉलीवुड, कि उसको वो एक पिक्चर, वो एक हीरो दिख गया जो बहुत बड़ा स्टार है, लेकिन उसके पीछे इतने सारे लोग जो बम्बे आते हैं who are in very difficult circumstances, वो नहीं दिखा. तो क्या ये गलती एस्पिरेंट्स की है? बिल्कुल है. क्या ये गलती रील बनाने वालों की है? हाँ है. क्या ये गलती सरकार की है कि भाई आप इसको थोड़ा सा कर्टेल कर लो? आई थिंक नाउ दे स्टार्टेड टू डू इट, स्पेशली बिकॉज ऑफ व्हाट हैज नाउ हैपेंड वेरी रिसेंटली. तो है, बट नहीं, इट इज़ वेरी मिसलीडिंग. इट इज़ मिसलीडिंग, इट इज़ फंडामेंटली मिसलीडिंग. एंड प्रॉब्लम ये है कि बहुत प्रॉक्सी चैनल्स में होता है ये, बहुत ही मतलब people will hire like a local photographer or a videographer जो उनके साथ चलेगा, वो सब ये है. It's very misleading. मतलब it's just anybody who says your life is set because you've gotten into the civil services is fundamentally misguiding you. मतलब ऐसा नहीं है. तो एस्पिरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि वो एक रील बस एक बहुत ही छोटा सा मोमेंट है, उसके पीछे जो एक्चुअली दे पुट इन ऑल द हार्ड वर्क एंड द वर्क दे डू, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द प्रोफेशन. एंड
यू शुड चेज दैट, वो आपकी एस्पिरेशन होना चाहिए कि वी वांट टू टेक अप अ जॉब और अ सर्विस विच कैरीज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी है. दैट शुड बी द रियल मोटिवेशन बिहाइंड प्रिपरेशन, रादर देन कि हाँ मतलब ऐसे घूमना है वीडियोग्राफर्स को साथ लेके. मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड इंटरेस्ट Yeah. यू, गवर्नेंस शुड इंटरेस्ट यू, वेलफेयर शुड इंटरेस्ट यू. यू शुड बी इनामर्ड बाय द आइडिया कि भाई ये इलेक्शन होता कैसे है. तो फिर अगर मेरे को ये चांस मिल रहा है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में या सब डिवीज़न में इलेक्शन कंडक्ट करा रहा हूँ, दैट इज़ अ वेरी इंट्रीगिंग एक्सरसाइज. आपको उस चीज़ से चार्म होना चाहिए कि अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में एमजी नरेगा के फंड्स आ रहे हैं और उससे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या बना रहा हूँ जिससे मेरी डिस्ट्रिक्ट के सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेटर होते हैं, मेरा डिस्ट्रिक्ट सेल्फ सफिशिएंट बनता है, मैं क्या कर रहा हूँ. अगर उसमें इंटरेस्ट है तो वो सही इंटरेस्ट है. मतलब काम में मज़ा आना चाहिए ना. बिल्कुल. मतलब वही बात है कि मतलब आप डॉक्टर इसलिए बन रहे हो बिकॉज यू आर enamored by the human anatomy, not just राइट. because of the white coat and the stethoscope that you get to carry around. बिल्कुल. The same thing. सर जैसे मैंने भी प्रिपरेशन करी है, और मैंने ये देखा है कि अगर आप 10 मिनट किसी यूपीएससी की बुक शॉप पे खड़े रहो बस, और बस ऑब्जर्व करो, तो एक चीज़ मैंने फील करी है वहाँ पर, दैट देर इज़ अ मास लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी इन द एस्पिरेंट्स कम्युनिटी. मतलब भयंकर इनसिक्योरिटी है, स्पेशली मटेरियल को लेके. मतलब मैंने भी अभी रिसेंटली बहुत एस्पिरेंट से कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, तो सब लोग मटेरियल को चेस कर रहे हैं. और मैं यही कहता हूँ कि भाई एग्जाम सेंटर के बाद वो आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे, ना कि ये कि आप कितनी मटेरियल को मार्क करके आए हो. अल्टीमेटली इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड, इफ यू प्रिपेयर द राइट सोर्स. तो क्या आपको लगता है ये मटेरियल के पीछे जो इनसिक्योरिटी है, ये एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है एस्पिरेंट कम्युनिटी में? We are generally in an era of over information and misinformation, right? तो इधर पहले we just having a conversation कि at the end of the day है तो ये सरकारी एग्ज़ाम ना. और सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी बड़ी सरकारी तरीके से होती है. एक्स मेरा सिलेबस है, वाई मेरे पी वाई क्यू हैं, जेड मेरे नोट्स हैं. वो एक्स वाई जेड का कॉम्बिनेशन है बस. और मतलब लोग कह के चले गए, हर साल जो बच्चे एग्ज़ाम निकालते हैं वो बहुत क्लियरली बताते हैं. क्वाइट अ फ्यू टीचर्स ऑल्सो से दिस कि एक किताब को 4 बार पढ़ लो, 4 किताबों को एक बार पढ़ने से वो मार्जिन ऑफ डिफरेंस बहुत कम होता है. एंड दैट्स जनरली द प्रॉब्लम. तो ये मतलब जो फंडामेंटल क्वेश्चन इज कि why is there an abundance of resources? Because there is an abundance of resource providers. कि हमारा आप एक जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करो. आपने मुझे कहा कि भाई फॉर इंस्टेंस सोशल इश्यूज इन पेपर वन पे एक क्रेडिबल सोर्स नहीं है या एक कंसोलिडेटेड सोर्स नहीं है, तो आपने उस पर मेहनत करी. लेकिन आप कह रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल कि नहीं, मैं मॉडर्न हिस्ट्री में जो स्पेक्ट्रम चल रही है उससे 70% सवाल हो रहे हैं. डोंट फिक्स समथिंग विच इज़ नॉट ब्रोकन. राइट. राइट. तो मतलब वो कि नहीं हम कुछ यूनिक करेंगे. तो अब क्या हो गया कि हम आपको ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं तो हम बेहतर हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो कंटेंट दे रहे हो जो 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 आप वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो एग्ज़ाम में काम आएगी. वो इम्पोर्टेंट होता है. बहुत बेसिक डिफरेंस है. सर एक स्टेटमेंट है सर, नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट. सभी भटकने वाले गुम नहीं होते. यूपीएससी 2023 मेंस ऐसे क्वेश्चन. सर इस क्वेश्चन को देख के मुझे लगा था ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स की कहीं ना कहीं स्टोरी को रिवील करता है. मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे थिंक दैट दे आर लॉस्ट, बट आई थिंक उनको एक परसेप्शन शिफ्ट चाहिए कि जो वो चीज़ सीख रहे हैं, जो ये जर्नी, जो प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन है, उनको जो वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, इफ़ दे यूटिलाइज इट इन द राइट वे, अगर वो उस नॉलेज को सही दिशा में डायरेक्ट करेंगे, सो दे कैन डू अ लॉट विद दिस नॉलेज. एंड आई थिंक जो वो इनसिक्योरिटी और डर जो एस्पिरेंट्स में अक्सर देखा जाता है, वो कम होगा अगर वो इस प्रेपरेशन को ही एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे. तो आपको क्या लगता है इस बारे में? Not all who wander are lost, but everyone who's lost is definitely wandering. So it works both ways. Uh, I'll give you very credible, like very real examples. UPSC preparation makes you well read. So jobs that require you to be well read will give you an edge if you have UPSC preparation. Now, what are the jobs that require you to be well read?
आप इतने मीडिया हाउसेज हैं यहाँ पे, आप ज़्यादातर एडिटर्स और जर्नलिस्ट से मिलो, सबकी एक दो अटेम्प्ट की जर्नी है. आजकल you have political consulting firms, whether it is Prashant Kishore's IPAC or whether it Yeah. is Association for Billion Minds. Most of the people who work in research and operations there tend to be people who have had some UPSC experience. एक एग्जाम, एक अटेम्प्ट लिखा, दो अटेम्प्ट लिखा, मेंस लिखा, whatever. Because well read on policy. People who now work in think tanks, people who now work in NGOs, people who work in research centers, you will generally see them to have some UPSC experience. So there is also a counter effect to this. If you seriously prepared for 2-3 attempts, not beyond it, एंड यू सीरियसली, मतलब आपके दिल को पता है कि आपने सीरियसली पढ़ा, और किसी को इस ब्रह्मांड में नहीं पता है कि आपने सीरियसली पढ़ा है, और आपने सीरियसली पढ़ के भी 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया है, दैट सिंपली मीन्स दैट देयर इज समथिंग बेटर इन लाइफ इन स्टोर फॉर यू, एंड देन व्हेन यू गेट आउट यू आर एम्प्लॉयबल. बट 6 years 7 years आफ्टर इट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी. Correct. तो मतलब right time, this is going to, even if you don't clear the exam, what you learn will automatically get you somewhere. You, if nothing else, even if you do a CAT exam, and then you're sitting for an MBA college interview, you will have more stuff to talk about as a UPSC aspirant in a CAT interview than somebody who would not. बहुत clear cut, मतलब there is a use case scenario. But beyond 2-3 years, Not the worth it it. doesn't work out. No, it doesn't work out. No. सर आप दिल्ली में ही पढ़ा रहे हैं लाइक 10 साल से इन वेरियस बिग इंस्टीट्यूट्स. तो सर आई एम श्योर आपने वो जो बड़ा बाजार मार्ग है, वो जहाँ पे पूरा यूपीएससी का मेला लगा रहता है, उस पे तो आप बहुत बार गए होंगे. मैं जब भी सर वहाँ पे वॉक किया हूँ ना, मैंने हर तरह का इमोशन वहाँ फील किया है. मैंने वहाँ डर देखा है, मैंने वहाँ डेडिकेशन देखी है, एंग्जाइटी देखी है, और एक पागलपन भी देखा है. सर आपने क्या फील करा है उस ORN की गलियों में? Hope. And शायद नहीं कहना चाहिए, but illusion, or the illusion of hope. ऑनलाइन भी पढ़ाया है, ऑफलाइन भी पढ़ाया है, आप जितने बड़े नाम सोच सकते हो उनके साथ काम किया है. तो सो I've had the opportunity to teach almost every kind of aspirant that comes and prepares for this exam, and that sort of gives me a very unique perspective कि वो IIT का भी बच्चा है, वो SRCC का भी बच्चा है, वो IIM का भी बच्चा है, वो NLU दिल्ली का भी बच्चा है, वो इग्नू का भी बच्चा है, वो MNIT का भी है, वो NIFT का भी बच्चा है, सब है. बट there's a hope and there's an illusion of hope. And क्या क्या नहीं लेके आते बच्चे, मतलब the kind of stress, the kind of pressure, the kind of hopes that they bring in. और आधी से ज़्यादा टाइम तो उनके परिवार की होप है कि मतलब सिविल सर्विसेज इज कंसिडर्ड बाय मोस्ट पीपल कि अगर आपने ये कर लिया तो परिवार का उद्धार हो जाएगा. 7 जन्मों का, हाँ, 7 पीढ़ियों का. there'll be a generational stability of a family and generations beyond it. So बच्चे पे बहुत प्रेशर है क्योंकि वो इशू है ही है ना. एंड प्लस इट्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव नाउ, Yeah. एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. मतलब ऑफलाइन इज वेरी एक्सपेंसिव. एक्सप्लॉयटेटिव लैंडलॉर्ड्स हैं, सिविक फैसिलिटीज़ नहीं हैं, कोचिंग रिफंड नहीं करती हैं. 1.5 साल पढ़ने के बाद भी आपको नहीं पता मेंस में क्या लिखना है, तो गलती आपकी नहीं, कोचिंग की है. और मेरी को दिक्कत ही इसी बात पे कि ये क्या होता है कि फाउंडेशन कोर्स में आप मेंस का नहीं पढ़ाओगे ना भाई, बिल्कुल. क्या 1.5 साल क्या कर रहे हो फिर, राइट. तो दोज थिंग्स आर देयर. तो फिर वो बेचारा 1 साल फाउंडेशन कोर्स करता है, फिर कहता है अब मेरे को अब मेंस का टेस्ट सीरीज अलग से करना पड़ेगा. अरे 1.5 साल में बच्चे को आप ये नहीं सिखा पाए कि आंसर कैसे लिखना है, तो गलती आपकी है ना, बच्चे की थोड़ी है. और क्या ही है इस आंसर में लिखने के लिए? You have to answer the question. You have to answer it coherently, with depth, diversity, in a descending order of importance, and you have to write it neatly. इसमें complex क्या है? राइट.
गाइडेंस की मतलब भारी कमी है, बिकॉज अगले साल फिर से कोर्स बेचना है ना, मतलब एक वो तो मोटिवेशन रहता ही है आई थिंक। सर मतलब अभी ORN वाज इन न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी हुई, उसके बाद सर एक सुसाइड लेटर काफ़ी न्यूज़ में चला ऑफ अ गर्ल हु वाज 26 इयर्स ओल्ड, कुछ अरे लैंडलॉर्ड का इशू था। सर ये जो घीटोज हैं लाइक यूपीएससी के, डू दे हैव अ डार्क साइड टू देम विच पीपल डोंट सी? सबको मोटिवेशन तो होती है कि यहाँ जाके पढ़ाई करेंगे माहौल मिल जाएगा, बट दे डोंट नो कि इस पूरे घेटो का एक डार्क साइड है। डार्क साइड तो मतलब ब्लैक होल है, डार्क साइड तो मल्टी लेयर्ड है, मतलब राजीव रंजन इज ब्लैक होल, मतलब निकलना वहां से बहुत मुश्किल है। अब अब ये भी सोचो कि वो बच्चा राजेंद्र नगर क्यों आ रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज फोमो। मैं कितनी भी अच्छी पॉलिटी पढ़ा लूँ या कोशिश कर लूँ, लक्ष्मीकांत तो बच्चे पढ़े गए। इस बात से मैं भी हार मान चुका हूँ। तो अब माई जॉब इज टू मेक श्योर कि लक्ष्मीकांत तो वो पढ़ रहा है, उसके ऊपर जहाँ जहाँ लक्ष्मीकांत कवर नहीं कर पा रहा है वो मैं कर देता हूँ। फेयर इनफ, बच्चे का भी रख लिया, अपना भी रख लिया। दिस इज कॉल्ड फोमो। नंबर वन रीजन वाई पीपल कम टू राजेंद्र नगर इज फोमो, कि कल को 2 साल बाद मुझे ये ना सोचना पड़े कि काश मैं चला गया होता तो मेरे को बेहतर लगता, तो मेरे से हो जाता। देन यू कांट ब्लेम एनीबडी एल्स, कि अब माँ बाप भी कि तुमको कोचिंग करनी है, बेस्ट कोचिंग में करो यार, सपोजिडली बेस्ट करो, कि अच्छे माहौल में रहो, एंड जो आपको करना है वो करो। एक सबसे बड़ा रीजन है फोमो। दूसरा, अ लॉट ऑफ टाइम्स चिल्ड्रन लिव इन जॉइंट फैमिलीज, तो वो जो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक आइसोलेशन ड्रिवन एग्जाम है। मैं ये बात कह के हार चुका हूँ। आप क्लास कर लीजिए, आप ऑनलाइन कर लीजिए, आप ऑफलाइन कर लीजिए, आपको अकेलेपन से प्यार होना चाहिए। जब तक कुंडी बंद करके आप 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा ब्रेक ले लेके अपने हिसाब से, जब तक आप उस पढ़ने के आदि नहीं होंगे, आपको जब तक वो हैबिट नहीं बनेगा, ये एग्ज़ाम एक फंडामेंटली डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है। तो वो लोनलीनेस कई बार लोगों को नहीं मिलती है, सो दैट देन दे वांट दैट कंपेनियनशिप, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। बहुत लोग इसलिए भी होते हैं कि वो थोड़ा दे वांट टू आल्सो फील इंडिपेंडेंट, राइट, कि और ये है कि कुछ ऐसा मिल रहा है जो कहीं और नहीं मिल रहा है। आई थिंक अब वो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो द केस। बहुत लोग होते हैं कि जैसे दिस इज जनरली सीन विद फीमेल स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम Tier 2 Tier 3 सिटीज़ की, उन पर शादी का प्रेशर होता है। तो कई बार ये भी होता है कि नहीं नहीं अच्छा हम एग्ज़ाम देंगे, एंड फॉर देम दिस एग्ज़ाम इज़ एन एस्केप फ्रॉम नॉट गेटिंग मैरिड ऑफ अर्ली। सो इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर दे आर इन, कि अगर हमने ही एग्ज़ाम नहीं निकाला या सीरियसली नहीं पढ़ा, हमारी तो शादी कर देंगे। एडिशनल बैगेज है, करेक्ट, पढ़ाई का बैगेज तो है ही करेक्ट। है। आई थिंक सर मतलब एक एस्पिरेंट ना, मेरे हिसाब से एग्जाम इज द लास्ट थिंग दे कॉन्कर द सिलेबस आई थिंक। apart from that, those who get selected I think, and even who prepare like with pure dedication, there are other lot of other things which they conquer every night in their room, their fear, their anxieties, they, जैसे सर आर्मी में बोलते हैं ना, it's not the mountains you conquer but yourself. I think the same applies to this exam. Yeah, yeah. Somebody who is having that extreme willpower to continue preparing for this exam with dedication, they conquer themselves through this process. In fact, think about it this way. If you're going to get into the civil services, it's going to be a multitasking job. This exam is a trailer to your actual career, where Right. your actual career is multitasking. This is multi-syllabus that has to be managed. So which syllabus has to be prioritized? Where are your weaknesses? अगर आपको लग रहा है कि भाई इको से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और इको में थोड़ा सा आपका हार्ट टाइट है, तो आपको इको पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। इट्स अबाउट सब्जेक्ट मैनेजमेंट, इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आप अपने आप को और अपनी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, तो आगे जाके आपको सर्विसेज में मैनेज करना मुश्किल होगा। इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। द सिलेबस इज बीन पर्पसली डिजाइन्ड इन अ way to test a candidate's skill of prioritization, कि have you done your basics? Syllabus, PYQ, subject prioritization, current ability assessment, इतनी 4-5 चीज़ें कर लो, you would have half your battle won. मतलब 1 साल हो जाता है, बच्चों को PYQ नहीं पता होता, PYQ हाथ में होनी चाहिए। बिल्कुल। 1 साल हो जाता है, बच्चों को सिलेबस नहीं याद होता। चलो याद नहीं, फेमिलियर तो रहो कि Right. सिलेबस में, क्योंकि
और टीचिंग ओरिएंटेशन इज नॉट लाइक दैट. राइट तो वो एक इशू है. तो यू नो उसमें बच्चों की गलती नहीं है. द टीचर ही सिलेबस नहीं बोलेगा कि भाई जब सिलेबस आप नहीं रटोगे या सिलेबस आप फेमिलियर नहीं होगे तो आपका लॉस है. आपको अगर अगर टीचर्स ही क्लास में PYQs नहीं डिस्कस नहीं करें. करेंगे डिस्कस, राइट. तो फिर वो बच्चे की गलती थोड़ी, उसको अहमियत थोड़ी ना पता चलेगी. वो टफ टफ मॉक टेस्ट के क्वेश्चन से उनके मन में वो डर बिठाया जा रहा है कि वो उसी को चेज करते रहे, वो मॉक टेस्ट को क्लियर करने में लगे रहते हैं रादर देन क्लियरिंग द एक्चुअल एग्जाम. राइट. सर जैसे हमने बात करी यूपीएससी के एग्जाम की, अब थोड़ा हम यूपीएससी के बारे में भी बात करते हैं कि खुद यूपीएससी एज एन इंस्टीट्यूशन, अब जैसे नीट की कंट्रोवर्सी हुई, राइट, उसके बाद से ना, और फिर उसके तुरंत बाद ये पूजा खेड़कर वाला केस आया, तो एक क्वेश्चन अब लोगों के बीच में आता जा रहा है कि भाई आर यूपीएससी एग्जाम्स आल्सो रिग्ड, लाइक टू सम एक्सटेंट. The exam being rigged and the interview process being rigged and the final collection of all of these being rigged are three very different questions. Rigged है या नहीं, I don't know, but I have always had, I mean 4-5 सालों से we've been fighting with the UPSC for student cases. They have been very unreasonable. मुझे कोविड का टाइम याद है and since then it has happened a lot. 2020, 2021, 2022, मतलब तीनों साल ये लगातार, इनफैक्ट 23 ऑल्सो, 4 years in a row this has happened कि बच्चों ने फाइनल एग्ज़ाम लिख लिए यूनिवर्सिटी के, प्री क्लियर कर लिया, तो मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में प्री क्लियर किया है, यूनिवर्सिटी की वजह से डिग्री में आने में रिज़ल्ट में डिले है, तो यूपीएससी ने कैंडिडेचर रोक दिया मींस का 1 हफ्ते पहले. अब सोचो बच्चों की हालत क्या है. देन वी हैव टू रश टू द कोर्ट्स, गेट सीनियर लॉयर्स टू रिप्रेजेंट, नहीं तो सुनेगा कौन. देन ऑफ कोर्स प्रो बोनो कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बट एट द एंड ऑफ द डे चलो पैसा भी कोई बात नहीं. सोचो वो बच्चे का मीन्स के 1 हफ्ता पहले क्या मेंटल साइकी होगा कि अरे मेरे को तो एग्जाम ही नहीं लिखने को मिला. वो हुआ है ओबीसी ईडब्ल्यूएस में इतनी बार, क्योंकि पॉलिसी फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस में क्लियर नहीं है, साइनिंग अथॉरिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्टेट में वेरिएशन है, वहाँ पे दिक्कत है. फॉर इंस्टेंस like from a policy point of view, something that we are currently working on right now is कि SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन मिलता है, EWS को नहीं मिलता है. राइट. And OBC is there's a central list and there's a state list. तो स्टेट लिस्ट वाले यूपीएससी में ओबीसी क्लेम नहीं कर सकते, तो स्टेट लिस्ट वाले ओबीसी क्या करते हैं, वो ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करते हैं क्योंकि इनकम क्राइटेरिया इज द सेम. तो देर इफेक्टिवली स्टेट ओबीसी अप्लाइंग थ्रू ईडब्ल्यूएस बट दे डोंट गेट एज रिलैक्सेशन. या तो सबको दो या किसी को मत दो. इंटरव्यू प्रोसेसेस आर वेरी वेरी क्वेश्चनेबल कि बोर्ड में किसी की बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे हैं. यूपीएससी इटसेल्फ हैज़ एडमिटेड कि हम ऑप्शनल में स्केलिंग करते हैं, राइट, बट क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम ये नहीं बताते. आंसर कीज नहीं आती, आंसर कीज प्रीलिम्स की आंसर कीज नहीं आती. समथिंग व्हिच नाउ आई एम गोइंग टू कोट फॉर विद दिस. देन 2 साल पहले एक आरटीआई मैंने फाइल करी थी कि आप मुझे बस इतना बता दो कि आपका मेंस का असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है. दुनिया भर में मेंस टेस्ट सीरीज चल रही है, दुनिया भर में इवैल्यूएशन का ज्ञान है, कोई मुझे इतना तो समझा दे कि आप किस बेसिस पे करेक्ट कर रहे हो. क्या एक रेफरेंस शीट है, क्या पैरामीटर्स हैं, ताकि आपके पैरामीटर्स पर हम भी बच्चों को प्रिपेयर करके भेजें. आरटीआई का रिस्पॉन्स आया कि हमारे कोई पैरामीटर्स ही नहीं है. इतनी ओपेसिटी. तो मतलब एट सो एट प्रीलिम्स में इफ यू सी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस हर साल, मतलब हर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 1 महीने में प्रीलिम्स का आंसर की निकालती है, गलत क्वेश्चंस को एक्नॉलेज करती है. यूपीएससी साल भर तक नहीं करती है. मतलब आपसे 100 क्वेश्चन नहीं बन रहे एक्यूरेटली एक पूरे साल में. हाँ, मतलब गलत हो रहे हैं, फिर आप 1 साल बाद वो क्वेश्चन रिट्रैक्ट कर रहे हो. बच्चा क्या सीखेगा. और उसका एक क्वेश्चन की वजह से जो सही था लेकिन आपने गलत माना है उस बच्चे का, तो क्या अगर वो एक बच्चा भी निकल गया जिसका वो 1 मार्क से प्रीलिम्स रह गया, क्या पता वो फाइनलिस्ट में होता. यू डन इनफ पॉलिटी. 2 साल पहले 3 साल पहले का क्वेश्चन है, आई डोंट रिमेंबर द ईयर. अकॉर्डिंग टू यूपीएससी's ऑफिशियल आंसर की a writ of mandamus cannot be issued to a government company. That is factually incorrect. राइट. बट उनके हिसाब से सही है. जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस पॉइंट. सर मार मार के हार गए.
अभी जैसे सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला क्वेश्चन था, उस पे भी बहुत डिबेट चली डिबेट थी। हुआ, which but I will still say कि ठीक है, हम्म, UPSC took a very simple approach, हम्म, took a literal approach, accepted. मेरा भी उस पे आंसर अलग था, हम्म, which I think I overthought, हम्म, but जो UPSC का प्राइमरी आंसर था वो सही था, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, राइट। that is a passable mistake, that's okay. अब अगर हम सर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जैसे मैं थोड़ा पढ़ रहा था कि बाकी कंट्रीज अपने ब्यूरोक्रेट्स को कैसे रिक्रूट करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया इज लाइक लैगिंग बिहाइंड, कि जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पूरा, जैसे कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं होता एस्पिरेंट्स का, तो प्रेजेंट इंडिया की जो नीड्स हैं, जिस तरह के हमको ब्यूरोक्रेट्स रिक्रूट करने चाहिए, इज द यूपीएससी रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैचिंग दैट डिमांड? Okay, the administrative service is a generalist service. You don't know exactly the kind of specific skills you would require to get into the administrative service. But it is the same exam which is recruiting you for the police service, for the foreign service, for the revenue service, for the accounting service, and for the railway service. These are diametrically opposite skill sets. A skill set that you would require to get to become a good police officer versus a skill set you would require to be a very good diplomat versus a very good auditor versus a very good tax specialist. अगर आपको मैथ्स फोबिया है और मैं आपको रैंक के हिसाब से रेवेन्यू दे रहा हूँ, you will struggle with राइट, the revenue service of the rest of बिल्कुल। your life, right? Because आपको मैथ्स से फंडामेंटल फोबिया है, बट वो रैंक पे वो मिला है, फिर क्या कर लोगे? Then imagine you're just so uncomfortable with your job, right? You have to be very good with logistics and organizational ability because the railways is the largest employer in the world, right? And if you're not comfortable with logistics management as a skill, putting 10 if you don't like permutation combinations, then railways is going to be a difficult job for you. सर रेलवेज के लिए तो इन्होंने पहले सेग्रीगेट भी करने की कुछ वो अटेम्प्ट अलग किया था। प्रॉब्लम रही है कि सेग्रीगेट किया, फिर मर्ज करा, हाँ। फिर सेग्रीगेट किया, फिर मर्ज करा. इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज दे हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द स्किल डेवलपमेंट सर्विस, व्हिच इज ओनली थ्रू द इंजीनियरिंग सर्विस. ये स्किल डेवलपमेंट नॉन टेक्निकल नहीं होती. वो कब से बोल के हार गए कि एक इंडिया ऑल इंडिया मेडिकल सर्विस होनी चाहिए, एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जुडिशियल होनी सर्विस, चाहिए. वो राइट। चल रहा है ऑल अभी. इंडिया जुडिशियल सर्विस पे तो अभी प्रेसिडेंट ने भी कमेंट किया था कि दे यू शुड हैव अ ऑल इंडिया जुडिशियल बहुत सर्विस। मुश्किल है होना, हम्म। बहुत मुश्किल है. पॉलिटिकल विल इज वेरी डिफिकल्ट फॉर it's not going to be very easy to make it happen. सर इसी पे मतलब बात करते हैं अबाउट द लेटरल एंट्री स्कीम, इट इज ऑल ओवर द न्यूज़। लेटरल एंट्री स्कीम एक तो क्या होती है एंड व्हाई डिड द गवर्नमेंट रोल इट बैक? ठीक है. So lateral entry is not something new. The idea is at relatively higher or senior levels in the government, you are hiring people beyond the competitive exam process. You're hiring people who are either subject domain experts who have work experience. You're basically bringing people from outside the ecosystem of the government. Right? That's basic lateral entry. Raghuram Rajan was lateral entry. But SEBI chief, which has been in the news for the wrong reasons, has been lateral entry. आई थिंक मनमोहन सिंह Right, आल्सो। right. हाँ Manmohan या। Singh has been lateral entry. So lateral entry has always been the case. The only difference is that from 2014 onwards, they wanted to institutionalize lateral entry. कि हम हर साल 3 साल के लिए या 2 साल के लिए for certain expertised ministries, हम होम मिनिस्ट्री में lateral entry नहीं ले रहे हैं बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी क्रिटिकल मैटर्स, बट एजुकेशन में लेना है, हेल्थ में लेना है, आईटी में लेना है, कॉर्पोरेट अफेयर्स में लेना है. मेक सेंस बिकॉज यू आर नॉट डीलिंग विद नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स. सो यू वांट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, यू वांट वर्क एक्स जीनियसिस टू सॉर्ट ऑफ कम इन. तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाह रहे थे, 2014 में भी किया. अभी रिसेंटली इट वॉज इन द न्यूज बिकॉज द नंबर वॉज वेरी हाई. It was the largest institutionalized intake of lateral entry. आई थिंक 45। Yes, 45, which was announced. Ab, there's a policy in reservation that if it's a single post, it can never be reserved. For example, CAG can never be a reserved post because there's one person who becomes the CAG. And this is established through Supreme Court precedents and also general jurisprudence. अब वो थोड़ा पॉलिटिकल हो गया कि on one hand you are allowing reservation in promotion,
and on the other hand you're doing lateral entry, and there are high chances that people from lower castes who may be good may not be given preference in lateral entry. So your purpose of having reservation in promotions, they have not implemented yet, would effectively be defeated in the future, and then it became political and theatrical to a point. So that is why it was rolled back. There was no other reason. सर इसी में एक थोड़ा यूपीएससी वाला क्वेश्चन आ गया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन में जैसे आपने बात करी दैट देयर इज अ रिजर्वेशन इन प्रमोशन बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि इंदिरा स्वानी जजमेंट ने तो मना किया था फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन देन हाउ डू वी हैव रिजर्वेशन इन प्रमोशन Because Jarnail Singh and Lakshmi Narayan Gupta have overruled it on that Okay. count, right? So you can have reservation in promotion. You don't have to, as per Lakshmi Narayan Gupta and the recent judgments, you don't even have to maintain like quantifiable data for it. And you have to make sure that this reservation does not affect the efficiency of administration, जो Article 335 में भी दे रखा है. Right. The general reservation policy should be not contravening to administrative efficiency, जो आपका प्री का क्वेश्चन भी है, क्योंकि reservation पे बस इतना ही पूछते हैं. Right. UPSC is very very limited because in the means they can never ask you your opinion on reservation, because and I'll take a minute to I make sort of Yeah, put yeah, this into please. light. is अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि आपका reservation पे opinion क्या है, तो आपका opinion इस बात पे depend करेगा कि आपको मिलती है कि नहीं, और मैं आपको marks दूंगा इस बात पे कि मेरे को मिलती है कि नहीं. तो मैं आपसे कभी भी रिटन एग्जाम में नहीं पूछ सकता, इंटरव्यू में नहीं पूछ सकता कि आपका रिजर्वेशन पे ओपिनियन क्या है. इसलिए आप देखना जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं, हैज़ एनसीएससी डन अ गुड जॉब, has NCBC done a good job, how does constitutionalization work, can NCSC enforce reservation in minority institutions. जब 2016 या 18 में जामे और अलीगढ़ ने मना कर दिया था कि हम शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन नहीं, वेरी पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चंस. दे विल नेवर बी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस. ऑलवेज. एक इनहेरेंट बायस रहेगा ऑलवेज. ऑलवेज. सर एक क्वेश्चन और बड़ा सर्कुलेट करता है और ये काफ़ी लोगों को ऐसा लगता भी है और ये नैरेटिव भी है, अब कितना सही है कितना गलत आप बताओ, कि जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनको सिस्टमैटिकली रिजेक्ट कर रहा है यूपीएससी थ्रू द एग्जाम प्रोसेस. To be very honest, I have very limited knowledge on this. Okay. Is this exam English friendly? Yes. Is the interview English friendly? Yes. Are there translation errors? Because पेपर बनता अंग्रेजी में, फिर उसका ट्रांसलेशन रीजनल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी में होता है. हैव देयर बीन ट्रांसलेशन एरर्स? यस. वही आंसर अगर आपने इंग्लिश में लिखा है तो आपको एक्स मार्क्स मिले, और हिंदी में लिखा है तो एक्स माइनस सम मार्क्स मिले. देयर आर डॉक्यूमेंटेड केसेस. बट ये कहना कि इज देयर अ सिस्टमैटिक बायस अगेंस्ट, मतलब आप उनको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो तो बायस ही हुआ ना. करेक्ट. तो हाँ, it is more difficult to clear this exam if you're writing this exam in a medium which is not English, unfortunately. सर एक आज से सर 10 साल बाद 10 years down the line, how do you see Indian bureaucrats getting recruited? Will there be any drastic change? No, the syllabus will change at the most. They will, but in the next 10 years, I'm fairly certain the syllabus will change. It will become far more inclusive. They'll have papers on management. I think they should have papers on public, administration more. They'll have papers on maybe more type of laws. They'll bring in more diversified subjects. They'll restructure the current setup. But is there going to be a fundamental change in the way they're recruiting in the next 10 years? No, because a lot of these changes are driven by how politically concentrated you are at the center. And a lot of times, because so UPSC is the top of the pyramid, but any decision that you take for UPSC will have a trickle down effect on a very strong electorate in the country. So you need to have that political mandate to take those kind of decisions. But is there going to be a fundamental difference in the way we recruit? No. Is there going to be a fundamental difference in the role of the bureaucracy in the next 10 years? Not. No. And matlab, I understand that a lot of people keep telling me कि bureaucracy is going to be redundant. Bureaucracy is going to be redundant. No.
population's increasing, welfare expectations are increasing, governance has become more complex, income inequality is higher. The role of the bureaucracy unfortunately is going to become greater. It's just that they don't have that kind of demigod status anymore. वो खटक रहा है कि अब हम माई बाप नहीं रहे. राइट. हाँ, अब वो प्रॉब्लम है. मतलब अनटच, मतलब क्योंकि हम सिंहासन पे, कि मतलब हम डेमी गॉड नहीं है. अब मैं कुछ भी बोलूंगा तो पलट के मेरे को सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया आप. बस वो डेमी गॉड स्टेटस धीरे 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 करके थोड़ा हट रहा है, बट अभी भी हिंटरलैंड में ऐसा कुछ नहीं है. ऐसे दिल्ली में वेरी ऑनेस्टली आपको पता है आपका कलेक्टर कौन है, आपका सब कलेक्टर कौन है, आपको नहीं पता. लेकिन आपको बरेली में पता होगा, या आपको जोधपुर में पता होगा, आपको झांसी का कलेक्टर पता होगा, आपको दिल्ली में नहीं पता होगा. बॉम्बे में आपको लगता है किसी को फर्क पड़ता है कि मेरा कौन. It all depends on where you are, right? Right. It is all about socio-economic context. That's why. सर मूवी देखना पसंद है आपको? हाँ, मूवीज देखना पसंद है, वेब सीरीज देखना पसंद है, सब कुछ देखता हूँ. सर हमें पता चला है कि आपको सुष्मिता सेन काफी पसंद है. क्या ये बात सच है सर? बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल 100% सच बात है. आपने सर एस्पिरेंट्स जो करके वेब सीरीज है, देखिए. 12th फेल, ये मूवी देखी है? हाँ सर दोनों देखिए, दोनों. दोनों 12th फेल देखी है. मूवी एंड एस्पिरेंट्स. लास्ट का सीजन नहीं देखा एस्पिरेंट्स का, थोड़ा सा मैं बोर हो गया था because it's the same thing, बट मैंने देखा है. हाँ. इसी को लेके सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने क्या देखा है, जब से ये वेब सीरीज आई हैं और थोड़ा ग्लोरिफिकेशन और हो गया है, तब से लोगों को, सोसाइटी को इन जनरल यूपीएससी के बारे में ज़्यादा पता चल गया है. इससे पहले व्हाट आई पर्सनली फेल्ट वाज यूपीएससी एस्पिरेंट्स दे लैक द रिस्पेक्ट दे डिजर्व. आई थिंक सर, अ यूपीएससी एस्पिरेंट ही गोज थ्रू ऑल द शिट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, राइट? एंड ऊपर से दे आर ऑलवेज इन अ फियर एंड दैट एंग्जाइटी के किसी को बताते नहीं है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, चुपचाप तैयारी करते हैं, क्योंकि फिर रिजल्ट क्या है उसका पूरा अकाउंटेबिलिटी होती है, राइट? और मैंने ऐसे ही, ये पता नहीं मैंने कहीं पर अगर ये लिखा है कि नहीं, बट मैंने खुद ही सोचा था कि what I feel is people don't fail this exam. Only a handful get selected. So nobody should consider themselves as failure in this exam. Correct. So now do you think कि society का एक perception aspirants को लेके change होने का like एक need है? People, the society in general, they should respect someone who is preparing for the exam and give him the space. कि okay, fine, you are not a failure if you don't clear this exam. एक social perception में वो shift आने की ज़रूरत है. मतलब if you're anybody who's preparing for any competitive exam, चाहे वो यूपीएससी हो, कैट हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, whatever, नीट हो, they should be given the respect of fighting the battle, Right. playing the game well. Not just UPSC, any exam, genuinely any exam. यूपीएससी थोड़ा सा रोमांटिसाइड ज़्यादा इसलिए है बिकॉज इट, मतलब इन द गवर्नमेंट स्कीम ऑफ थिंग्स इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंट्री, राइट? मतलब एसएससी बैंकिंग में लोअर लेवल्स एंट्री है. सो इन दैट सेंस यस, रोमांटिसाइजेशन थोड़ा सा बेटर हुआ है, बट आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट टेक टू दिस, एंड दिस इज स्लाइटली प्रॉब्लमेटिक. फंसेंगे हम लोग, मैं पहले ही बोल रहा हूँ. पिछले 3-4 सालों में because of edtech, because of series like 12th fail and aspirants and everything else, कि वो एक और अंजना पिक्चर थी कि तुम्हारा प्यार नहीं यूपीएससी है, निकल ही नहीं रहा है, you know, from those anecdotes, remember? Yeah. कि अरे लिख लो कहीं यूपीएससी में ना आ जाए. करेक्ट, अनुभव सिंह बसी, राइट, एन एंटायर एपिसोड ऑन दैट. तो मतलब डायलॉग्स की लिख लो कहीं यूपीएससी में ना आ जाए. अभी वो स्त्री 2 पिक्चर आई थी, उसमें वो डायलॉग था कि इनको तुरंत घोषित कर दिया जाए कलेक्टर. सो इट इज मेन स्ट्रीम नाउ एंड राइटफुली मेन स्ट्रीम. नाउ द इशू इज, मेरा बहुत मन था बचपन से कि मैं पायलट बनूं, या मतलब लोको पायलट, मतलब नॉट फ्लाइट पायलट, ट्रेन का पायलट. आई एब्सोल्युटली लव ट्रेन्स, बट एम आई कॉम्पिटेंट टू बिकम दैट? एब्सोल्युटली नो. सपने देखना अच्छी बात है, सबको देखनी चाहिए, बट इट टेक्स 2 wings to fly and a very hungry stomach to even attempt to do so.
मेरी बस की बात नहीं है जेई क्लियर करना, मेरी बस की बात नहीं है एम्स का एग्ज़ाम क्लियर करना, मेरी बस की बात नहीं है सीए का एग्ज़ाम क्लियर करना। क्या मेरी बस की बात है यूपीएससी क्लियर करना? उसकी एक अनअडल्टरेटेड कॉन्वर्सेशन कोई मुझसे करके तो दे दे कि तू कर ले यूपीएससी, तेरा मन है 1 साल कर ले, 2 साल कर ले, ट्राई करके देख, नो हार्म, कल किसी ने नहीं देखा, बट डोंट बी अटैच्ड टू इट, Yeah. right? So what has generally happened is a lot more people are preparing, thankfully, because costs have come down digitally, online education is cheaper, और जिसको नहीं खरीदना है वो टेलीग्राम से ले लेता है, whatever, मतलब है, there is enough resources. More people, why are more people preparing for this exam? Is it because preparing for this exam is now fundamentally cheaper? Is it because this exam has become too mainstream? It is pop culture. UPSC is now pop culture, right? Is it because of the reels that we started our discussion with? Is it because the private sector has disappointed the youth of this country in terms of opportunities and innovation? It's all of this. It's a Right. deeper, far more serious problem that we're not talking about. And I am sorry, the bureaucracy is an expenditure function. इस देश में जिस दिन आप एक बिजनेस ओनर को इज्जत देना शुरू कर दोगे, वो जावेद हबीब है, उसके 150 सलून है, उसने इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है जो एक देश की राज्य सरकार नहीं कर सकती, लेकिन आप उसको नहीं बुलाते हो. Right. दैट इज माई प्रॉब्लम. The strength of a country lies in the vitality of the MSME sector, the middle scale businesses. They generate employment, they contribute to an economy. The bureaucracy is important, but so is everything else. एवरीथिंग वो जो डायलॉग्स चलते हैं ना सर यूट्यूब पे कि नौकरी है तो बस आईएएस ही है और कुछ है ही नहीं. राइट. तो सर इसी से मेरा एक क्वेश्चन है. अगर सर अभी आप लाइक 21 ईयर्स के होते, अभी भी आप उतने ही लगते हो, सही बात है. बट अगर आप 22 ईयर ओल्ड होते जो अभी अभी इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट करके बाहर आए हैं, राइट, सो विल यू अटेम्प्ट द यूपीएससी एग्जाम? Now, Yeah. this year, if I was starting Yeah. out, If you are starting out straight out of college, you're 22 years old, will you attempt the UPSC exam? not more than twice. That is something I did 10 years also ago. Not more than twice. Because I would have had it, because I would still have an interest in policy. That is my only reason to have attempted this exam. That I was genuinely interested in policy. Still am to a very large extent. But if I was not interested in policy, I would have not attempted. मैं मेरे को मतलब मैं कुछ नहीं तो मतलब कोई एआई सीखता, या मैं कुछ एक बहुत ही नीश स्किल सीखता, कुछ द वर्ल्ड इज चेंजिंग यार. मतलब अगर कोई आज आईआईटी ग्रेजुएट है और उनका एआई में इंटरेस्ट है या कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो दे शुड गो फॉर दैट स्ट्रीम ओनली. मतलब वो एक इनसिक्योरिटी अगेन जो एक वो हाइप है इस एग्जाम की, उसके चक्कर में अपनी लाइफ इसमें ना इन्वेस्ट करें. दे शुड परस्यू इफ दे हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन समथिंग एल्स, बिकॉज दैट विल आल्सो गिव देम द इक्वल बेनिफिट. is the UPSC the best government job in the country? Yes. Is it the best job in the country? No. राइट. ये बहुत बेसिक डिफरेंस लोगों को पता होना चाहिए कि if you want to join the government, no doubt the UPSC is a very good way to start your journey, whatever it could be. But is it necessarily the best job in the country? Maybe not. Absolutely not. And especially, yeah, if somebody's done an IIT degree and has interests in AI, pursue करो ना यार, किसने मना किया? बिल्कुल. Why not? But वही है कि there has to be enough infrastructure, backbone, resources, corporations. It's a longer policy game, right? Right, sir. Sir, I read a line that don't be afraid to make mistakes, but don't make mistakes which are fatal. आपको एग्जाम के अंदर हर कोई ये गाइड कर रहा है कि ये कर लो, डूज सब बता रहे हैं. मैं आपसे पूछता हूँ सर कि डोंट्स क्या है एग्जाम के, कि ये करोगे तो पक्का फेल होगे, मतलब ये नहीं करना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपने ये किया तो. व्हाट आर द डोंट्स ऑफ दिस एग्जाम? Got it. Don't take this exam as an emotional ego exercise. You have to have a very practical approach.
दिस इज एन एकेडमिक एक्सरसाइज. मुझे आखिर के मार्कशीट में नंबर चाहिए. वो नंबर जैसे आएंगे वो सही है. वॉट एवर गेट्स मी दोज नंबर्स ऑन द मार्कशीट इज द राइट थिंग टू डू फॉर मी. तो मतलब हवा में बह के मेरे को ये ऑप्शनल नहीं लेना है. चूज Right. योर मतलब to be very practical about your decisions with this exam. That's number one. Number two, uh, do not uh, get into a new emotional attachment in the process of this exam. Right. पहले से कुछ चल रहा है, स्टेबल है, बढ़िया है, but this exam is such a vulnerable state to be in. Don't enter into a new relationship while you are preparing for this exam. Because आपको knowingly unknowingly it will take bandwidth away, it will take you know focus away. तो थोड़ा सा वो you have to keep in mind. So वो detrimental होता है. मतलब आप everybody will say कि हम अलग हैं, but अगर सभी अलग है तो फिर normal कौन है? The exception cannot be the rule. 3 is टीचरों को भगवान मत बनाओ. आप अगर मुझसे सवाल नहीं कर सकते कि सर आपने जो पढ़ाया है क्या ये एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, क्या इससे मेरे को मार्क्स मिलेंगे, क्या ये सही पढ़ाया है आपने, या आपने मुझे क्यों पढ़ाया है, इसका बेसिस क्या है, तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेप करने का. बेसिक कि आपके मेंटर्स हैं, आजकल ये मेंटरशिप भी बिकम लाइक अ थिंग. सो आपके मेंटर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके इवैल्यूएटर्स हैं, जो भी है सवाल पूछो, क्वेश्चन एवरीथिंग. ये नहीं करोगे कि नहीं 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 हमको सर ने बोल दिया, मैम ने बोल दिया कि यही करना है. अरे क्यों करना है भाई? दिव्य ज्ञान कुछ नहीं है इस एग्जाम में. दिव्य ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं है. सही बात. लॉजिकल अप्रोच, लॉजिक मांगो बिल्कुल उससे कि आप ये मुझे बिल्कुल. स्ट्रैटेजी बता रहे हो, क्यों बता रहे हो. हाँ कन्विंस, बिल्कुल. यू शुड तो टेल मी, कन्विंस. every child is not the same, right? राइट. तो मतलब what you may require 2 readings per subject, somebody may require 4 readings per subject. Maybe you don't need to write an answer from the first month onwards. Maybe somebody needs to just generally write something, क्योंकि उसने अब कोई इंजीनियरिंग बच्चा है, उसने ज़िंदगी भर फ्लो चार्ट बनाए हैं, तो उसके लिए वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज एन एलियन कॉन्सेप्ट. उसको एक महीने में सीख लेगा वो. तो मे बी ही शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग अ मंथ बिफोर यू डू, एज अपोज टू समबडी हु इज अ सोशल साइंसेज ग्रेजुएट. अब वो सोशल साइंसेज ग्रेजुएट की प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत वर्बोस है, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है. इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है. राइट. तो वो प्रिसाइज और वर्बोसिटी का बैलेंस चाहिए. तो हर बच्चा अलग होता है. इंजीनियर्स वो जुगाड़ सीख के आ रहे हैं, हाँ, और डीयू के बच्चे वो आंसर्स कि घिस वो घिस के आ ड्यू रहे हैं. फॉर्मेट है कि मुझे 4 पेज लिखने हैं, भरना तो वो है. कंसाइज नहीं हो पाता है. विच इज़ वाई जनरल ज्ञान मेरे से कम ही दिया जाता है कि मतलब ऐसे कर लो ऐसे कर लो. एवरी चाइल्ड इज़ वेरी डिफरेंट. तो ये आपके लिए मे बी स्पेक्ट्रम इज़ द राइट बुक फॉर यू, मे बी आर एस शर्मा इज़ द राइट बुक फॉर मी, मे बी डी डी बासु इज राइट फॉर यू, मे बी लक्ष्मीकांत इज राइट फॉर. ठीक है, एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे. बच्चे को समझो तो कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, एंड दैट समथिंग दैट आई एम आल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट. आप एक प्री असेसमेंट फॉर्म तो लो बच्चे से, उसके बच्चे को तो जानो कि क्या बच्चा कम समय लेता है लेकिन उसको कम समय तक याद रहता है. उसको 5 पेज पढ़ने में 10 मतलब उसको 5 पेज पढ़ने में 1 घंटा लगता है, लेकिन उसको वो 6 महीने तक याद रहता है. हर देयर इज अ बैलेंस, देयर इज अ रेशियो. तो आप उसको उसी हिसाब से बताओगे, राइट? कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको नोट्स जब तक वो खुद से नहीं बनाएगा उसको याद ही नहीं होगा. कुछ बच्चा होगा कि उसके सामने नोट्स रख दो वो रट लेगा. तो you can't give a one shoe fit all sort of. There are some basic norms, but everything else is very customized. वो customization ही नहीं है. सर मैंने कल अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से ना कुछ क्वेश्चंस अब पूछे थे. सो आई टोल्ड देम कि जो भी सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे वो हम लास्ट में पिक करेंगे. सो आई जस्ट आस्क यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम माय फॉलोअर्स. Sure, sure. राइट. एंड सर पहले तो ना सबको थोड़े सस्ते नशे चाहिए होते हैं कि 9 मंथ का कोई छोटा सा प्लान बता दो, क्रैश कोर्स बता दो, जिसमें शॉर्ट और क्रिस्प में ब्रैकेट में ये भी लिख के दिया है कि शॉर्ट एंड क्रिस्प 9 मंथ की स्ट्रैटेजी आईएएस बनने के लिए. मतलब आईएएस बन रहे हैं या ये चिप्स बनने का ट्राई कर रहे हैं, बट 9 मंथ की कोई स्ट्रैटेजी होती है सर, निकल जाता है एग्जाम 9 मंथ्स में.
अगर आप सिंगल हैंडेडली हाइपर फोकस करो, आई नो पीपल हु क्लियर्ड इट, बट वो बहुत बहुत ही कम सेक्शन है. दोज पीपल हु हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ एकेडमिक डिस्टिंक्शन, दोज पीपल हु हैव अ नैक ऑफ क्लियरिंग competitive exams. So those are generally the kind of people who have done well in 9 months or 1 year. But and if you study the habits of those people, उन्होंने एक किताब उठाई है, एक स्टैंडर्ड सोर्स उठाया है और उसको घोट लिया है. उन्होंने दाएं बाएं नहीं देखा है. Right. देन दे टेक दिस एग्जाम एज वॉर, कि ये मेरी, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि मेरा मेरा फॉर एग्जाम्पल जोग्राफी में एनसीईआरटी है एंड लेट अस से पीएमएफ है, कॉमन सोर्स GC11 व्हाटएवर, कि उसका वो पेज घोट गया है. और वो प्री के पहले वो अंधा चल रहा है. वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं 20 टेस्ट करूंगा क्वालिटेटिवली, वो 50 टेस्ट कर रहा है. तो वो मतलब वो बिल्कुल आर्मागेडॉन हो गया इस एग्जाम को लेके. तो those are generally the kind of people, but they come with a certain, academic lineage, in a manner of speaking. So generally यही होता है. सर काफी बच्चे ये भी पूछ रहे हैं दैट हाउ टू अचीव इमोशनल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन. लाइक इमोशनल क्राइसिस सर बहुत लोगों ने बोला है कि इमोशनली हम एक हफ्ता पढ़ते हैं बट उसके बाद ऐसा मन हट जाता है, राइट? फिर डिस्ट्रैक्शंस होती हैं. तो हाउ टू कीप योरसेल्फ इमोशनली स्टेबल? 100 बात की एक बात, एक्सटर्नल मोटिवेशन नाम का कुछ नहीं होता. मोटिवेशन इज ओवररेटेड. द वर्ड जिसको हम डिसिप्लिन कहते हैं उसको लोग इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं. तो वो इमोशनल क्राइसिस के कॉजेस क्या हैं? एक होगा डिस्ट्रैक्शन, दूसरा होगा द इनहेरेंट अनसर्टनिटी ऑफ दिस एग्जाम, तीसरा होगा सम पर्सनल इश्यूज, चौथा होगा सम लॉजिस्टिक्स फैमिली इश्यूज, पांचवा होगा सम सोसाइटल इश्यूज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो every kind of an issue will have a different emotional impact, but the key to emotional stability is to never ignore emotional turbulences. And I'll take this opportunity to also tell you and everybody कि we as teachers are not qualified to give you mental health guidance. Our job is to normalize it. Our job is to tell you it is okay. I have gone to therapy. There's nothing wrong with it. Go to therapy. Take professional help. It could be an academic anxiety problem. It could be an attention problem. It could be anything. But somebody who's trained in it should tell you this is what it is. Teachers who are not trained in mental health should not give mental health guidance. They should normalize it. They should not talk about it in a way that people are like, for example, Shivin, right? He has ensured that mental health is okay. It's Right. okay to feel odd. Acknowledging it. Acknowledging it, Right. accepting it, वो बहुत है. कि हमें पता है हमारे साथ भी हुआ है, हाँ, what is happening with you is exactly. normal. But don't give a solution to it, right? Because then you are playing with a child's mind. वो आपका solution implement कर लेगा और जब वो 2 महीने के बाद बर्नआउट होगा एंड वर्ल्ड विल क्रैश डाउन, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ है. सर आई थिंक रील्स पे तो बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ एडवाइस चलती है. करेक्ट. और वो सिर्फ और ज्यादा नुकसान ही कर रही है. बिल्कुल बिल्कुल. एक सर लास्ट क्वेश्चन, ऐसे को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. आई थिंक अभी बच्चे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट है, कुछ लोगों के तो अभी 2 साल बाद अटेम्प्ट है, एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट ऐसे कि ऐसे की क्या स्ट्रैटेजी होती है. एंड सर मेरे हिसाब से तो ऐसे की कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं होती अगर आपकी जनरल रीडिंग अच्छी है. सो बट हाँ, यू आर मोर इक्विप्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन कि ऐसे के लिए कोई स्ट्रैटेजी है जो एक बच्चा फॉलो कर सकता है. So there can be a method to the madness. The only thing is you should not, in my, I don't know, I could be wrong here, but जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि you should prepare for an essay once you have at least done some GS substantially. तो वो fodder नहीं बनेगा. Never jump to an essay without at least have done something or some base in GS 1 2 3 4. फिर आप आर्ग्यूमेंट्स निकालना शुरू कर दोगे. एंड जनरली आजकल वो फिलोसॉफिकल एसेस थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं. सो यू हैव टू लर्न हाउ टू ब्रेक इट डाउन कि आपने कहा कि सपोज नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट. सो व्हाट डू यू मीन बाय इट?
you have defined a circumference to that essay, then you've told the examiner कि मैं इसमें ये चीज़ें cover करूँगा, and then you can give maybe a para of counter that maybe all who wonder are lost, or maybe then give me like a concluding statement. But all of those things have to be then supported by fodder content from GS 1 2 3 4. मतलब वो ऐसे पहला पेपर होता है, बट टेक्निकली 1 2 3 4 इक्वल्स ऐसे, राइट, तो वो कॉन्सेप्ट है। वो थीसिस और देन एंटी थीसिस बनाना और Either फिर way, उसके अंदर हाँ, कंटेंट प्रोवाइड करना, करेक्ट बस तभी आएगा जब आप एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर लोगे। करेक्ट राइट, करेक्ट करेक्ट, मतलब मेरे हिसाब से। सो सर थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका सर पर्सपेक्टिव ही है जो आपको अलग बनाता है, एंड आई होप सर हमारी ऑडियंस को भी वो पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा लगा होगा सुनने में, और वो भी इस कॉन्वर्जेशन को सुनने के बाद एक इस एग्ज़ाम को और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी डायमेंशंस हैं उनको एक अलग नज़रिए से देखेंगे। सो सर थैंक यू सो मच, एंड इट वाज अ लवली टॉक विद यू। थैंक यू।